Hello everyone and a very good evening to all of you and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss important science and technology questions for the upcoming CMAT exam and for which would be helpful for XGMT and MICAT exam as well. Okay. So basically we have done some classes earlier also. So I will show if you have not watched those previous classes, I will recommend that you should watch those classes as well, so that it would be easy for you to cover all each and everything. Okay, so let us begin with the thing which you are supposed to cover, the earlier classes. Yes, first of all, go subscribe to our channel. Well, सबसे पहले subscribe कर लो, then go to the playlist. ठीक है, so here is the playlist and I hope you are aware of it. Now you are mature enough, so click on playlist, reach here. तो यहाँ पर एक ZAT 2025 करके प्लेलिस्ट होगा, इसके व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, click here and you will get this video. Okay, so this is almost around 10,000 people have watched it. This I had made for ZAT purpose, but this is not only helpful for ZAT but for the other exam as well. So please go and watch it. This would be helpful for you in other exams, like CMAT and other exams also. So I would request you to please watch it. Now, another video, a few videos which I would recommend you is actually go to the playlist. और ये ZAT 2025 के बगल में on the left side you will find one playlist CMAT 2025 करके. So click on view full playlist. Okay, and you will see some videos like this video of general awareness which I have done in the last Saturday. Go and watch that. ये वाला देख लेना. And if you go down, you will find two more videos. One, these two are light blue colored videos जिसमें ZAT and CMAT लिखा होगा. And इसके thumbnail पे लिखा है important history questions. And so please watch that. And इसके thumbnail पे लिखा है GK, polity, etc. करके. So GK and polity I have discussed. So please watch that also. ठीक है, that would be helpful. So that is why I am helping you to cover most of the things in a very short time. Now let us begin with today's class. In today's class, I will be discussing science and technology. ठीक है. So I will discuss previous year question of CMAT also. So PYQs वगैरह भी discuss करा दूंगा, so that it would be easy for you to answer. Okay, please keep on answering me. Yes. So bauxite is an iron ore of mineral of what? Tin, aluminium, mercury, manganese, and I think it's very easy. Bauxite is Al2O3, है ना? So it's actually aluminium. So these are taught in school days, and you will see many. I'll show you the previous year question also in this class. So you will realize many of these things are taught in your school days. Okay, so B is the right answer to this question. This you should be knowing it, है ना? So primarily, है ना? So bauxite is the main source of aluminium as well as gallium, but main is aluminium. You should know. Now let's move on to the next one. How many rare earth elements are there in periodic table? 8, 16, 17, 22. And nowadays there is very much demand of rare earth elements and all. So how many rare earth elements are there? So the answer is C. 17 is the right answer to this question. This you should be knowing it. So no need to remember each and every one, but some idea hona chahiye. Okay. So these are the rare earth element. Now let us move on to the next. इससे पहले एक answer C था. Let's move on to the next question. And the next question is in front of you. Please read the question and then answer me. The question is, which of the following determine the absolute value of charge on an electron? So electron पे जो charge होता है ना? So that was actually determined, told by which scientist? And I'll be a little fast because I believe that you all should be knowing these things. Okay, so the right answer actually is option C. R.A. Millikan is the right answer to this question. Okay. Now the next question is question number 4. So the question number 4 says ANFO, PETN, TNT, etc. are classified as what? High explosive, low explosive, primary explosive, fireworks explosive. तो इससे रिलेटेड एक पूछा हुआ है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, है ना? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये पूछा गया एग्जाम में. नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? Okay, so this is highly explosive. I hope you are aware. TNT जिसको कहते हैं. I'm sure you must have heard its name. So A is the right answer to this question. Okay, so high explosive is the right answer. Now the next question is, which of the following chemical is not used in fire extinguisher? I hope you are aware. This is called as fire extinguisher. आग बुझाने वाला. And so dry ice, carbon tetrachloride, methyl nitrate, potassium bicarbonate.
What is the right answer to this question? So I'm waiting for the response. I believe that you all should be answering it. So that is why I'm expecting. So the right answer is C. Not पूछ रहा है ना, methyl nitrate वगैरह तो it's used in explosive and all. So this is not the answer है ना. Dry ice जानते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड is CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं ना. And potassium bicarbonate is है ना KHCO3 होगा ना. Bicarbonate is this. So the right answer is C is the right answer to this question. Okay. Yes. Let's move on to the next one. So the next is which of the following is the most reactive halogen? I hope you understand. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, ये सबको halogen कहते हैं. The most reactive one is which one? है ना. So halogen जो होता है, जो group 17 का होता है, ऊपर से नीचे तक उसकी reactivity decrease होती है. So fluorine is on the top. So the right answer is A. Yes, Karthik, you are right. A is the right answer to this question. ठीक है. तो ये है जो ये वाला जो ना, this is halogen group. So ऊपर से नीचे तक इसकी productivity decrease है ना. So fluorine जो है सबसे ज्यादा actually fluorine जो है सबसे ज्यादा radioactive. I hope you are aware. I mean सबसे ज्यादा reactive होता है ना. So these are taught in school days and all. Okay, the next is which of the following is known as spirit of vitriol? या इसको और लिखते हैं oil of vitriol. Sulfuric acid, diethyl ether, zinc sulfate, aluminum sulfate. What is the right answer to this question? क्या सही जवाब है? And I think it's easy. I mean, it's very famous. H2SO4. Sulfuric acid. I'm sure you must have heard. So H2SO4 is oil of vitriol या spirit of vitriol कहते हैं. These are taught in school days and you should be knowing A is the right answer. Similarly, blue vitriol होता है. So CuSO4 5H2O को blue vitriol कहते हैं ना. Then green vitriol होता है FeSO4 7H2O. So this is called as green vitriol. And एक और famous होता है white vitriol. So zinc sulfate 10H2O. So this is called as white vitriol. So these are very famous ones. ये तीन नाम भी याद होगा तो काफी है. बाकी ये नीचे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं. हाँ, oil of vitriol तो मैंने बता दिया H2SO4. But these are the famous one: blue vitriol, green vitriol, and white vitriol, which are actually generally asked in exams. Let's move on to the next one. Salts of which of the following provide colors to fireworks? Zinc and silver, potassium and mercury, strontium and barium, chromium and nickel. जो पटाखा में कलर्स आते हैं वो कौन से एलिमेंट की वजह से, किसकी सॉल्ट की वजह से? What is the right answer to this question? So the right answer is option C. Strontium and barium is the right answer to this question. C is the right answer. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. These are the one liners, है ना. Produces दो, barium है वो generally green light produce करती है, and strontium जो deep red color. फिर copper जो blue color और sodium जो yellow color. ठीक है, so you should be knowing about this. Let's move on to the next one. Which of the following elements are required in soldering? Soldering आपने देखा होगा. I'm sure you must have seen this in your life. Soldering. Iron and tin, lead and tin, aluminium and lead, aluminium and iron. What is the right answer to this question? Yes, the right answer is option B, lead and tin. So याद रखना, PB को lead लिखते हैं ना, PB, and tin को SN लिखते हैं ना. So B is the right answer to this question. Okay, you should be knowing it. The next is which of the following non-metal is not a poor conductor of electricity? मतलब जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है ना. बट देयर आर सम एक्सेप्शन. Some non-metals are good conductor also. So like for example, the right answer is selenium. It is a non-metal but is considered as good conductor of electricity. So B is the right answer to this question. Okay, है ना. तो ये selenium है. The next is which of the following isotopes of hydrogen is radioactive? अच्छा, isotope समझते हो? Atoms of same element and having same atomic number. यानी atomic number same होता है
मतलब सेम ही एलिमेंट होता है बट डिफरेंट मास नंबर, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स, ठीक है। और आइसोबार उसका रिवर्स होता है, मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आइसोटोप्स में जैसे ये ना हाइड्रोजन का 1 1 1 2, हाइड्रोजन 1 3 है ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम होता है, मतलब डी लिखते हैं इसको यहाँ से और एक टी लिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो इसमें क्या आता है, तीनों का जो ये है एटॉमिक नंबर ऑफ 1 है बट मास नंबर चेंज हो रहा है, राइट। सो कौन सा वाला रेडियो एक्टिव होता है, सो द राइट आंसर इज सी, ट्रिटियम जो होता है थर्ड वाला, द थर्ड वन इज एक्चुअली रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। इसको प्रोटियम ऐसे लिखते हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो अगर नीचे 1 है यानी एटॉमिक नंबर सबका सेम है बट ऊपर जो है मास नंबर अलग है ना। सो यू कैन सी इट हियर। सो let's move on, है ना, to the next one. Which of the following is used in making the wire of a flash bulb? Copper, silver, tungsten, magnesium. These are taught in school days, इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं दे रहा हूं। I am moving slightly faster because I believe that you all should be knowing it. Because basic science and technology मैं cover इसलिए करा दे रहा हूं because there are questions. I will show you previous year question also. Yes, the right answer is tungsten. C is the right C is the right answer to this question, not magnesium. C. Yes, Karthik, Rahul, you both are right. C is the right answer. Let's move on to the next one. Calcium sulfate dihydrate is commonly known as what? Glass, limestone, asbestos, gypsum. कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4, ठीक है, इसकी बात हो रही। तो द राइट आंसर इज एक्चुअली डी, है ना। सो जिप्सम को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। CaSO4 2H2O रहेगा ना, आई थिंक डाइहाइड्रेट होगा ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिहाइड्रेट लिखा गया, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यस, द राइट आंसर इज ये नहीं, लाइमस्टोन तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, दिस इज लाइमस्टोन जो चौक होता है, ठीक है। सो जिप्सम इज CaSO4 2H2O और ये जिप्सम का फॉर्मूला है जिप्सम, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2 हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। सो दिस स्लाइड डिफरेंस, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए CaSO4 2H2O इज जिप्सम और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे पूछा था है ना, स्कूल डेज में पढ़ाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये सब सिमिलरली एक होता है CaO, इसको क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, क्विक लाइम। CaCO3 इज चॉक या लाइमस्टोन कहते हैं, चॉक, ठीक है। सो दीस आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग। लेट्स मूव ऑन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फिलोसोफर्स वुल? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। व्हाट इज द राइट आंसर? Philosopher's wool. So the right answer to this question is option C, ZnO, zinc oxide को philosopher's wool कहते हैं। So C is the right answer to this question. Let's move on to the next one. Which of the following organ receives only oxygenated blood? Liver, lungs, spleen, none of the above. The right answer is C. Spleen is the right answer to this question. ठीक है. So this you should be knowing. Okay. Let's move on to the next one. Which hormone is produced by hypothalamus? So the right answer, waiting for the response. So the right answer is A, oxytocin. This is also called as love hormone. It is produced during childbirth also, and it helps in mother breastfeeding also. So oxytocin is a very famous hormone. So this you should be knowing. So A is the right answer. Adrenaline, तो adrenaline gland होता है किडनी के जस्ट ऊपर, और वो कोई इमरजेंसी जब होता है ना, पैनिक में होता है, जब हार्ट बीट तेज होता है तभी एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज होता है। एंड समवन इज इन नर्वस और एक्सट्रीम हार्ट बीट, एक्सट्रीम टेंशन और एक्सट्रीम शॉक, सो इन दैट केस द adrenaline produces adrenaline gland and all produces adrenaline, ठीक है। सो एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन रश एक कॉन्सेप्ट होता है, सो कोई पढ़िएगा, सो ठीक है।
So these are the things you should know. Which of the following is called as a stranger's gas? Argon, neon, xenon, nitrous oxide. The right answer is C. Xenon is the right answer to this question. So xenon is actually called as strange or unusual होता है. Xenos है ना. आपने सुना होगा देखिए एक वर्ड जैसे आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड xenophobic. सुना ये वर्ड? द वन हु डू नॉट लाइक, ये होता है डिसलाइक, नहीं पसंद करने वाला है ना. xeno मतलब फॉरेनर है ना. सो जो फॉरेनर बाहर के लोगों को नहीं पसंद करे, xeno वहीं से आया. xenon unusual, strange, stranger, बाहर का आदमी है ना. So that is how it is, the term is. है ना. Inert gases पढ़ा होगा, xenon, radon है ना. So that is what actually is being talked. The next is which of the following is the lightest and the heaviest metal respectively? कौन सा सबसे हल्का मेटल है, कौन सा सबसे भारी मेटल है? These are basic science and technology questions you should be knowing. So the lightest is lithium. L से lightest, L से lithium. Osmium is the heaviest. So B is the right answer to this question. ठीक है. Yes, Karthik, you're right. B is the right answer to this question. तो L से lightest, L से lithium तो याद हो जाएगा. तो यहाँ Li है भी, यहाँ Li is lithium होता है. ये तो आसान है. ठीक है. ठीक है. Heaviest is osmium. The next is which of the following is the blueprint of life? यानी सारी जिंदगी का पूरा जीन सब कुछ यहीं रखा हुआ है. एंड द राइट आंसर इज आई होप यू आर अवेयर डीएनए है ना. बिकॉज डीएनए में जितना भी जीन होता है डीएनए सीक्वेंस में ही है ना. जैसे आपका डीएनए है तो ये जो पूरा जीनोम, इसकी पूरा सीक्वेंसिंग को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं. पूरा उसका रिसर्च मतलब knowing about the entire DNA, the sequence, that's called as genome sequencing. इसी में जो कोडिफाइड पार्ट होता है, the part which is codified for protein, so that's called as gene, उसी का एक हिस्सा होता है. That is what you should be knowing. एक चीज और मैं बताता हूँ when we are talking about it. देखो RNA is generally single stranded like this है ना, और DNA ऐसा होता है deoxyribonucleic acid डबल स्टैंडर्ड होता है. ओके. RNA में 4 न्यूक्लिक एसिड होता है, AUGC, एडेनिन, ए लिखा है ना, यू इज यूरासिल, जी इज गुआनिन और साइटोसिन इज सी. ठीक है. सिमिलरली डीएनए में सिर्फ यूरासिल की जगह थायमीन होता है. एटीजीसी होता है, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन. तो दीज आर न्यूक्लिक एसिड. ठीक है ना. तो जैसे अगर डीएनए होता है इट इज समथिंग लाइक दिस है ना. तो अगर ये है ना, अरे बॉन्डिंग होता है, मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पर टी है. सो लेट मी मेक इट विद अदर पेन कलर. ए टी के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है. ठीक है. और यहाँ पर जी है और सी से मैच करता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है लाइक दिस. फिर यहाँ पे जी है 1 2 3 सी ऐसे लाइक दिस. ठीक है. सो दिस इज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड. और एक्चुअली एक चीज होता है ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन सेल के अंदर, इनसाइड द ह्यूमन सेल अ फेनोमेना हैपेंस. दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज, आपने सुना होगा, आई एम 100% श्योर, डीएनए कन्वर्ट्स इनटू आरएनए and RNA converts into protein. This happens inside human body continuously. So the conversion movement of DNA to RNA is called as transcription, and RNA to protein is called as translation. And this happens in the entire human being all the time, and that is why this is called as central dogma of life. This keeps on happening in human life. ठीक है. ओके. और एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19. उसमें आरएनए को डीएनए में वापस कन्वर्ट कराया जा रहा था. दैट इज व्हाई द टर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज यूज्ड. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग सम आइडिया, रफ आइडिया अबाउट इट. ये सब रफ आइडिया होना चाहिए. और सारे जीन में आपको जितने भी हेरिडेटरी चीज सब यहां से आता है. ओके. दिस इज व्हाट यू शुड नो. एंड आई होप यू आर अवेयर कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड इनसाइड द न्यूक्लियस यू विल फाइंड डीएनए. बट यू शुड बी केयरफुल कि सम ऑफ द न्यूक्लियस यू विल फाइंड इट इन माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो. ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया ना, इसे बहुत स्मॉल अमाउंट में, लेस देन 1% अमाउंट में वी हैव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आल्सो.
but 99.9% DNA you will find it in nucleus. ठीक है. Let's move on further. Who gave the theory of natural selection? ये सब तो पता ही होगा, I'm sure. राइट आंसर इज चार्ल्स डार्विन, है ना. तो ये सब आपने सुना होगा ना. डी इज द राइट आंसर. यस, कार्तिक, प्रवीण, यू बोथ राइट. द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेकिंग सोडा. ये घर में यूज होता होगा रोटी स्वेल करने के लिए, मतलब मोटा करने के लिए होता है ना, पफी बनाने के लिए, जैसे नान वगैरह में नॉल. सो बेकिंग सोडा इज यूज्ड आई थिंक इन केक आल्सो मेकिंग. सो इट्स एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, NaHCO3. ठीक है. सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. यस, प्रवीण, कार्तिक, यू बोथ राइट. लेट्स मूव ऑन, है ना. तो ये NaHCO3, Na प्लस और ये HCO3 है. Let's move on to the next one. LPG gas cylinder contains which two gases? LPG मतलब वही liquefied petroleum gas जो घर में यूज करते हो. This one. ये सब कभी कभी मैंने देखा है, 1 में से पूछते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में. सो द राइट आंसर इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, है ना. सो द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. यस, कार्तिक, प्रवीण, यू ऑल राइट, है ना. So LPG is either 100% propane or 60% propane and 40% butane. ज्यादा अमाउंट में प्रोपेन होता है. So if there is one option, then you should go for propane. ठीक है. Let's move on to the next one. Which of the following helps in blood clotting? तो कौन सा vitamin helpful होता है? और inside the body, है ना, there is platelets which is helpful in blood clotting. And blood clotting के लिए जो vitamin use helpful होता है वो है vitamin K, phyloquinone, है ना, विटामिन के कहते हैं. सो यस, प्रवीण, वेरी गुड. डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग. ओके, है ना, ब्लड कोगुलेशन वही हो गया. यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज मेनली ऑब्जर्व्ड? फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. यानी जो खाना ठीक से पचा नहीं उसमें से अगर वाटर जो ऑब्जॉर्ब होता है कहां से? तो फूड पाइप में तो पचने का सवाल ही नहीं. ऐसा तो वैसे रास्ता होता है esophagus which goes like for it act as a passage, है ना. yes, the right answer is D is the right answer. वाटर वगैरह का जो लास्ट में होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है. yes, प्रवीण, कार्तिक, you all are right. D is the right answer to this question. ठीक है. so the last one is large intestine यहाँ पर है ना, specifically water digestion and all के लिए, है ना. The next one is, ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है. Xylem and phloem you will find it in plants are located where and they are helpful for what? देखो, xylem जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है एंड phloem जो है फूड ट्रांसपोर्ट, है ना. सो कभी कभी ये पूछते हैं कि xylem is helpful for what? For transferring water and all, है ना. So the right answer is actually A is the right answer. Center and outer side of bundle respectively. तो xylem बीच में, है ना, और आउटर साइड में phloem है. ठीक है. So that is what you should know. So the right answer is A. फिर इसमें ये नहीं जाना, बट ये जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या ट्रांसफर करता है. तो ये वाटर करता है और ये फूड, है ना. So that is what you should know. The next is which of the following is used as anti-freeze for automobile engines? ये ठंडे एरिया में यूज किया जाता है. In cold region specifically it is important, otherwise the engines would get freezed, petrol or diesel inside it. So the right answer is ethylene glycol. So D is the right answer to this question. ठीक है. ठीक है, ethylene glycol यूज करते हैं. अच्छा, आप इथेनॉल समझ रहे हो? नहीं, इथेनॉल तो मिक्स किया जाता है वो मतलब थोड़ा सा चीपर बनाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बट एंटी फ्रीजिंग एजेंट ये होता है इथिलीन ग्लाइकोल. ठीक है. सो डी इज द राइट आंसर, है ना. इथिलीन ग्लाइकोल 1-2 साल पहले न्यूज में था. खैर ये अब उतना ही पुराना हो गया. इसमें न्यूज में से था कि कुछ मेडिसिन में इथिलीन ग्लाइकोल वगैरह पाया गया था. काफी हंगामा हुआ था उस टाइम पर. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. Which one of the following is explosive out of these four? मैंने थोड़ा देर पहले बताया भी था. फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मरकरी ऑक्साइड, ग्राफाइट, नाइट्रोग्लिसराइड, है ना. ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन मैंने बताया था ना, TNT.
नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो जहां पे आए ना, उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि एक्सप्लोसिव में यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रो, उस टाइप का सब्सटेंस जो है जनरली। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले सो यू कैन मार्क इट अकॉर्डिंगली। सो डी इज द राइट आंसर। ग्रेफाइट तो पेंसिल वगैरह में यूज होता है, तो एक्सप्लोसिव में होना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे बिलीव करना है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। द नेक्स्ट वन इज हाँ टीएनटी वगैरह। The next is which of the following is called as laughing gas? Nitric oxide, nitrous oxide, carbon dioxide, ozone. क्या सही जवाब है? What is the right answer? Yes, the right answer is nitrous oxide. So B is the right answer. ऐसा होता है N2O. तो ये मत याद रखिए, कब से भी याद रख लीजिएगा, N2O is not laughing gas. Yes, Praveen Nayak, you are right. Karthik, yes, B is the right answer. Now the next is which of the following is a component of acid rain? एसिड रेन, ये मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखा है क्वेश्चन आते हुए, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्स में। Yes, very good. The right answer is sulfur dioxide and nitrous oxide. So D is the right answer. Yes, Praveen Nayak and Karthik, you both are right. NOx and sulfur dioxide. So D is the right answer. Okay, and SO2 and NOx react with water, oxygen and other chemicals to form sulfuric and nitric acid. तो ये जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड अगर देखो वाटर से रिएक्ट करेगा H2O से, तो H2SO4 वगैरह बन जाता है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस एसिड। सिमिलरली ये HNO3 नाइट्रिक एसिड वगैरह बन जाएगा वाटर से रिएक्ट करके नॉल। सो इसीलिए इसको एसिड रेन कहते हैं ना, बिकॉज एसिडिटी ऑफ कोर्स इट बिकम्स एन एसिड टाइप थिंग। सो डी इज द राइट आंसर। और H2SO4 एवरीवन नोज इज अ वेरी फेमस एसिड। HNO3 आल्सो, जहां H प्लस मिलेगा ना वो एसिड का काम करता है, ठीक है। HNO3, H2SO4, HCl, ठीक है। The next is which of the following is responsible for protein synthesis inside the human cell? Mitochondria, nucleus, ribosome, lysosome. Yes, Karthik, right. C is the right answer. Mitochondria को क्या कहते हैं? Power house of the cell. Because it generates power in the form of ATP, adenosine triphosphate. Lysosome digestion के लिए helpful होता है, but sometimes it is also called as suicidal bag of the cell, है ना? So these are the things you should know. और न्यूक्लियस में तो आपको पता है DNA वगैरह इसमें होता है, सारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड ऑल, ठीक है। राइबोसोम in the rough endoplasmic reticulum are the primary site of protein synthesis. राइबोसोम मिलेगा, rough endoplasmic reticulum होता है ना, एक सेल ऑर्गेनेल है उसी में, ठीक है। और दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना। ये प्लांट सेल है, ये आपको मिलेगा, ये राइबोसोम्स होता है ना। तो the next is the approximate range of wavelength of visible light, है ना। विजिबल लाइट हम लोगों ने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो ऐसे याद रखना, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, रफली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 400 से 700 के आसपास कौन सा, ये वाला आ रहा था, नियरेस्ट वन। सी इज द राइट आंसर। नैनोमीटर, यू गॉट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। एंड नैनोमीटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज नैनो टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, वो भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी जो है इट वर्क्स, अगर कोई भी एक डायमेंशन 1 से 100 नैनोमीटर का है, आउट ऑफ द 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से कोई भी एक, so that actually that technology will come under nanotechnology and it will have some special features at that level of scale, ठीक है। so that's a different thing but you should know, so C is the right answer. आपने ये देखा होगा, this is called as electromagnetic spectrum, ठीक है। एंड एक चीज और आपने सुना होगा, E is equal to hc/λ, मतलब एनर्जी जो होता है वो लैम्डा, मतलब देखो मैं साफ से लिख देता हूं so that you can understand. E energy is equal to hc/λ. C is actually speed of light, है ना। 3 रुक जाओ मैं
E is equal to hc by lambda. E is energy. H Planck constant होता है, आपने पढ़ा होगा. I'm sure you must have heard it. C is speed of light 3 into 10 to power minus 8 मीटर पर सेकेंड. और ये जो होता है, ये इसको कहते हैं वेवलेंथ. और आई होप ये भी आपको पता होगा दैट C by lambda is equivalent to frequency. ठीक है. So इसलिए ऐसे भी लिख सकता है E is equal to H into frequency, because frequency is nothing but C by lambda. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, मतलब ऑपोजिट यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, है ना. तो फ्रीक्वेंसी जहां बढ़ेगी वेवलेंथ घटेगा, इतना तो पता होना चाहिए. ठीक है, तो आप खुद देखो. देखो वेवलेंथ क्या होता है, मैं ये तो एकदम कॉमन सेंस से भी देखोगे तो आप समझ जाओगे. देखो ये इसको कहते हैं वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक. ये लैम्डा हो गया. अब हम इसका लैम्डा घटा दे रहे, पतला कर दे रहे. मान लिया ऐसे कर दिया. अब इसका वेवलेंथ क्या होगा, एक पूरा. तो यही वेवलेंथ अब इतना हो गया, यहां से लेके यहां से शुरू हुआ था तो यहां पर खत्म होगा, ये हो गया. अब क्या करोगे, उस रीजन में 3 वेवलेंथ आ गया. क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि नहीं, आपको देखने से नहीं लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. घनी आबादी होगी, सो दैट्स फ्रीक्वेंसी. सो व्हेन यू रिड्यूस द वेवलेंथ द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज. ठीक है. तो अगर आप यहां देखोगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कई बार एग्जाम में पूछा आता है. गौर से देखो, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम. देखो इसकी वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक है, वेवलेंथ इतनी लंबी है, और इसकी वेवलेंथ बस इतनी सी होगी. ठीक है. सो हियर इज फ्रीक्वेंसी इज मोर, तो wherever you will find more frequency the less wavelength. और चूंकि E is equal to H into फ्रीक्वेंसी होता है, ये E is equal to H C by lambda होता है, तो एनर्जी ज्यादा उधर रहेगी जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. एनर्जी जो है ना ऐसे बढ़ेगी, एनर्जी का डायरेक्शन. ओके, यानी गामा रेस के पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर. और वेवलेंथ ऑपोजिट जाते जाएगा, है ना. अब देखो वेवलेंथ टाइप जो मीटर में 10 to power 3, ये वाला वेवलेंथ ज्यादा है, ये कम होते जाएगा 10 to power -2, 10 to power -5 विजिबल, है ना. अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे. सो इफ यू सी देखो -12 हो गया, ये -10 था. सो द वेवलेंथ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, बट इफ यू सी फ्रीक्वेंसी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है ना फ्रीक्वेंसी. तो इसी में आपको यहां देखना है, ये है विजिबल लाइट जिसमें हम लोग लाइट करते हैं, मतलब विच वी कैन सी. तो आप देखो है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. आर यू एबल टू सी? ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ब्लू है. तो ये इसका है 400 नैनोमीटर और रेड का है 700 नैनोमीटर. ठीक है, और इसी के रेंज में आता है पूरा वो विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम, 400 से 700 नैनोमीटर. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. ठीक है, और बाकी आप देखोगे तो रेडियो वेव्स इतना बड़े लेवल पर काम होते हैं, 1000 वेवलेंथ होता है मीटर, है ना. तो फिर ये माइक्रोवेव्स, यहाँ इंफ्रारेड, यहाँ जो भी एक्स रे, गामा रे. सो दीज आर द थिंग्स, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आई हैव सीन क्वेश्चंस in different exams, so of course you should know. When ants bite, they inject which acid? Oxalic, acetic, methanol, formic acid. What is the right answer? जब आंट बाइट करती है फॉर्मिक एसिड, HCOOH, है ना. दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड. ठीक है, और एसिटिक एसिड ऐसे लिखते हैं CH3COOH. विनेगर, है ना, विनेगर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. तो सिरका होता है. ऑक्सैलिक एसिड तो प्याज वगैरह में होता है ना, तो यू विल फाइंड इट एंड ऑल. So D is the right answer. And formic acid is this one. Let's move on to the next one. Which of the following is not a fat soluble vitamin? तो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है. फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. ठीक है. सो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन A, D, E, K, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेनॉल, फाइलोक्विनोन, है ना. और ये जो बी वाला होता है, बी ग्रुप का, B1, B2, B3, ये सब वाटर सोल्यूबल होता है. A, D, E, K, है ना. So the right answer is, this is the exception, so A is the right answer to this question. ठीक है. So fat soluble में, हाँ, fat soluble A, D, E, K. So these are fat soluble, and
फिर ये सब है ना, बी का जितना ग्रुप है और सी का ग्रुप, ये जो हो गया वाटर सॉल्युबल, ठीक है। सो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 है। विटामिन सी जो साइट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है, ऑरेंज में, लेमन में, ये सब में, तो ये सारे वाटर सॉल्युबल हो गए, है ना। और ये वाले जो फैट सॉल्युबल ADE के, ठीक है। तो जैसे दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। ओके, सो विटामिन डी वगैरह जैसे है ना, हड्डी वगैरह में हेल्पफुल होता है ना। सो यू गेट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड ऑल। सो विटामिन ए की बीमारी कमी से यू विल फाइंड नाइट ब्लाइंडनेस एंड एटसेट्रा। विटामिन के इज हेल्पफुल एक्चुअली इन ब्लड क्लॉटिंग, है ना, ब्लड क्लॉटिंग काफी हेल्पफुल होता है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। Let's move on to the next one. The major chemical compound found in kidney stone is urea, calcium carbonate, calcium oxalate, calcium sulfate. जब आपने सुना होगा क्या किडनी में स्टोन हो गया है नॉल, तो उसके लिए कौन सा कंपाउंड होता है? सो द राइट आंसर इज कैल्शियम ऑक्सलेट। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस यू शुड बी नोइंग। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड, अच्छा पीएच आप जानते होगे, आई होप यू आर अवेयर। So basically pH scale is from 0 to 14, ठीक है, and this is 7. So 7 मतलब completely neutral, जहाँ 0 से नजदीक आएगा एसिडिक होते जाएगा, and 14 is basic, ठीक है। आई होप यू आर अवेयर। तो जितना 0 के करीब है मोर एसिडिक, और जितना 14 के करीब है नियर टू 14 विल बी मोर बेसिक, और समवेयर बीच में न्यूट्रल, ठीक है। तो पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है? 7.5 7.6 के अराउंड होता है। सो द राइट आंसर इज 7.6 होता है। आई थिंक सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज द पीएच। तो जैसे 0 पीएच सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बताया H2SO फॉर बैटरी वगैरह में जो यूज होता है, जो ऑयल ऑफ विट्रियोल वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है। फिर स्टोमक एसिड कौन सा? तो HCl होता है ना, पेट में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस वीक होता है। फिर इधर जाते जाओगे, ये इंक्रीजिंग एसिडिटी लिखा ना, 0 के करीब जाओगे तो। फिर विनेगर होता है CH3COOH, ये वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, है ना। फिर एसिड रेन जो सल्फ्यूर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह होता है, ठीक है। टोमेटोस, है ना। देन कॉफी यहाँ, प्योरेन यहाँ, और 7 के आसपास होता है मिल्क, ठीक है। फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर एकदम न्यूट्रल होता है, तो 0 एकदम न्यूट्रल, ठीक है। ब्लड और टीयर्स जो यहाँ पाता है 7 से थोड़ा सा इधर, ये 7.5 7.6 के अराउंड, ठीक है। फिर और जाते जाओगे तो यहाँ पर जो OH लास्ट में लगा होता है, जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे OH लगा हो बेस होता है, पावरफुल बेस होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये एसिडिटी वगैरह में यूज किया जाता है। अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो दवा में डाला जाता है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सो दिस इज आल्सो बेसिक। इसके बाद से यहाँ से बेसिक शुरू हुआ और इधर से एसिडिक होता है। आई होप यू आर अवेयर, दीज आर बेसिक थिंग्स, कोई नई चीज नहीं है, but just for revision purpose we are discussing these. Which of the following hormone will release during anger, anxiety and fear? मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन। तो क्या इंसुलिन तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए होता है ना। एंगर, एंजाइटी, फियर के लिए एड्रेनलिन, मैंने बताया ना, जस्ट किडनी के ऊपर में एड्रेनलिन ग्लैंड होता है। ऑक्सीटोसिन इज लव हार्मोन, है ना। सो द राइट आंसर इज द राइट आंसर। The next is endoscopy is used to explore inside the body with the help of which principle? Endoscopy आपने देखा होगा, एक पाइप डालते हैं डॉक्टर बॉडी के अंदर, और उसमें कैमरा होता है, कैमरा से सारा कुछ देख लेते हैं ना कि हाउ इज द बॉडी फंक्शनिंग एंड ऑल, ठीक है। तो जैसा अगर अंदर कैमरा लगा है तो पहुंच ऐसे करके पहुंच कैसे रहा है कंप्यूटर तक। So how the light is coming? Yes, total internal reflection. So yes, Karthik, you are right. D is the right answer to this question. तो आपने देखा होगा इस तरह, जैसे अगर लाइट डालोगे तो ऐसे जाएगी, नहीं पाइप के अंदर ही रहेगा। एंड दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रैक्शन। आपको पता होगा अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, अगर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है। और वो कब होता है? जब ये वाला डेंसर टू रेयरर जा रहा हो, है ना, इन दैट केस, ठीक है। आई होप यू आर अवेयर, है ना। So these are the things you should be knowing, ठीक है। The next one is इसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना।
angle of incidence should be greater than critical angle. So these are taught in school days. The next one is the deficiency of which of the following vitamins causes night blindness. मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया भी था. मैंने बोला था फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ADEK. ये फैट सॉल्युबल होता है ना, और वाटर सॉल्युबल में होता है विटामिन C जो एस्कॉर्बिक एसिड और B1 B2 B3 B5 एटसेट्रा एंड ऑल. ठीक है. सो नाइट ब्लाइंडनेस ए विटामिन ए की कमी से होता है. यस प्रवीण, यू आर राइट. ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. देखो ये पता होना चाहिए. रेटिनॉल नाइट ब्लाइंडनेस है ना. डी कैल्सिफेरॉल रिकेट्स हो जाता है, हड्डी की बीमारी. मैंने आपको जानते हो कि विटामिन डी की कमी से AD है ना, और फाइलोक्विनोन से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाता है. मैंने बताया ना कि प्लेटलेट्स के मतलब इसका काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है ना. दीज आर फेमस वंस. बाकी B1 की कमी से बेरी होता है, और B12 की कमी से एनीमिया, जो आयरन की कमी से भी होता है ना, आयरन एंड ऑल. सो B12 की कमी से. एंड विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी होता है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस. सो दीज आर वेरी फेमस वंस आस्क्ड इन एग्जाम एज द फॉलोइंग एक्सेट्रा में. सो और विटामिन C के लिए बेस्ट सोर्स है ना, ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, ये सब में होता है. ओके देन और भी जैसे कैल्शियम हड्डी, इफ देयर इज तो ब्रिटल बोन्स कमजोर हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा. फास्फोरस से बैड टीथ है ना, दांत में फास्फोरस वगैरह यूज किया जाता है सफाई करने के लिए. आयरन की शॉर्टेज से भी आप एनीमिया एंड ऑल. आयोडीन इज वेरी फेमस. गोइटर हो जाता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर गले के पास होता है. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस. सो दीज आर द फेमस वंस यू शुड बी नोइंग. Now let us ask some previous year questions. So of CMAT exam, here's the question: which of the following plants about plants is correct? Respiration and photosynthesis relation है, question है. तो आपको पता होगा respiration and photosynthesis happens on the opposite direction, opposite chemical reaction होता है ना, मतलब that's actually exactly opposite. Respiration is done by us also. Plants इसलिए कहा जाता है ना कि रात में जो है प्लांट के पास नहीं जाना, because वो respiration करते हैं and all. So basically photosynthesis काफी faster होता है. B is the right answer, at much faster rate than respiration. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब होगा. तो ये तो आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है और वाटर को लेता है, और एनर्जी यानी सनलाइट जो आता है, so use it with the help of chlorophyll and produces what we call it as glucose plus oxygen, है ना, C6H12O6. This is called as photosynthesis. This is done by plants, है ना, जिससे वो प्लांट कार्बन को अब्सॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है ना. और जो नीचे वाला है रेस्पिरेशन, उसमें वो रिवर्स होता है, एग्जैक्ट अपोजिट होता है ना. C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो 6CO2 6H2O केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है. So something done by humans also, है ना. That is why we release carbon dioxide. But you have to be cautious that this is also done by plants also in night. इसीलिए आपको पता होगा स्कूल सिखाया जाता है स्कूल में कि in the night do not sleep near plant, because plant does not do photosynthesis, rather it does reverse. वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो भी हमारे तरह सांस लेता है ना. ठीक है. So exactly opposite है, but ये वाला faster होता है. This is much faster, है ना. So that is what you should be knowing. Okay. So proceeds much faster than respiration. B is the right answer, है ना, this question. The next question is in front of you. Please read it and then answer me. And they'll be asking some more questions. BrahMos missile is very much in the news. I'm asking one more question. That recently or last year, the government of India has sold BrahMos missile to a particular country. What is the name of that country? वो भी बताना है. This is a part of science and technology as well as current affairs, whatever you can say. कोई बता सकता है इसका सही जवाब? हाँ, फिलीपींस. वेरी गुड प्रवीण नायक, ग्रेट. तो फिलीपींस ने इंडिया से खरीदा है BrahMos. And now answer this question जो आपके सामने है स्क्रीन पर. It's a previous year question of CMAT. And this is primarily common sense based also. मतलब देखने से आपको डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने होगा. So I know that it is difficult, but एक दो वर्ड से आप पकड़ लोगे आंसर.
there is only one word with the help of which you can reach to the answer. Only one word. इधर देखना करेक्ट पूछ रहा हूं. Which of the following is correct? देखो मिसाइल की बात हो रही. मिसाइल है ब्रह्मोस, ठीक है, विच इज डेवलप्ड बिटवीन इसरो ऑफ इंडिया, DRDO. इसरो इज नॉट इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, इट इज इन स्पेस टेक्नोलॉजी. बस ये गलत कर रहा था, वन गलत हुआ, सो द आंसर इज बी. सब वन जगह कट जाएगा. सो इजी क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर. ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं, ये ब्रह्मोस मिसाइल है. सो बी मैं बताता हूं कैसे है. BRAH इज ब्रह्मपुत्रा, इट्स अ रिवर इन इंडिया, इन आसाम, आपने नाम सुना होगा. MOS इज मॉस्कोवा, इट्स अ रिवर इन रशिया. तो यहीं से नाम आया है. ठीक है, ब्रह्मोस. ठीक है, सो दैट इज व्हाट. सो इट्स इंडिया रशिया जॉइंट इनिशिएटिव. इंडिया की DRDO है. यस, वेरी नाइस, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर. हाँ, और ये सबमरीन शिप एयरक्राफ्ट कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है. और ये हेल्पफुल हुआ बिकॉज इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ MTCR. हाँ, 2016 के आसपास वी बिकेम द मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम. इसके अंडर ये होता है, दिस इज अ ग्रुपिंग अंडर विच we are if you are not a part of MTCR then we cannot make long range missiles. उसमें कुछ restrictions था and now it has been removed because we became a member of MTCR and now we can have long range missiles. ठीक है, तो इसलिए अलाउ हो गया, फिर इंडिया ने बनाया ये. ठीक है, तो इंडिया की DRDO, ठीक है, और रशिया की NPO कंपनी करके, NPO मशीन, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, तो ये रशिया की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के बनाया. ठीक है, और देखो लिखा ना ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा रिवर, इस दोनों को मिला के MOS यहां से लिएगा, BRH यहां से. इसीलिए आप देखोगे कैपिटल B लिखते हैं, RAH स्मॉल, देन कैपिटल M एंड OS स्मॉल, ऐसा लिखते हैं. ठीक है, सो दिस इज, यू शुड बी नोइंग इट. और देखोगे लास्ट ईयर इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस, दैट वाज आल्सो वेरी मच इन द न्यूज़. सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. अच्छा, एक क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे नहीं, क्रूज मिसाइल यहाँ लिखा ना कि सुपरसोनिक मतलब सॉरी. सो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या फाइंड आउट की. सॉरी. Which of the following gas is used to disinfect water? अब देखो ये आसान क्वेश्चन है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर स्कूल डेज. जो ब्लीचिंग पाउडर डालते, यस, वेरी गुड, क्लोरीन होता है ना उसमें. यस कार्तिक, यू राइट. CaOCl2, सो द राइट आंसर इज, है ना, CaOCl2 उसको कहते हैं ना, OCl2 ऐसे लिखते हैं ना. वाटर ट्रीटमेंट ब्लीचिंग एजेंट में, है ना, क्लोरीन यूज करते. आई होप यू आर अवेयर, ये आपने सुना होगा. द नेक्स्ट इज डैश वेरीज डायरेक्टली विद एम्पलीट्यूड. ये साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है. लाउडनेस, मॉड्यूलेशन, क्वालिटी ऑफ साउंड, टोन ऑफ द साउंड. यस, वेरी गुड कार्तिक. देखो मान लीजिए है ये, ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे, ऐसे कर दोगे, तो क्या हो, लाउडनेस ही तो बढ़ेगी. एम्पलीट्यूड इसी को कहते हैं, ये वाला एम्पलीट्यूड हो गया एम्पलीट्यूड. तो अगर इफ यू इंक्रीज दिस एम्पलीट्यूड तो क्या होगा, आवाज तेज हो जाएगी. दैट्स वेरी सिंपल. ठीक है, तो अगर आप इसकी लाउडनेस देखो, ये वाला लाउडनेस कम हो गई, इसमें लाउडनेस बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया. और पिच का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना. तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो पिच डिक्रीज हो गया. ठीक है, पिच मतलब ये वाला कम जगह में ज्यादा होगा ना, मतलब वेवलेंथ को डिक्रीज करना, वेवलेंथ डिक्रीज करना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. एंड दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग पिच. ठीक है, और एम्पलीट्यूड अगर आप बढ़ा रहे हो किसी का, इट मींस लाउडनेस बढ़ा रहे हो आप. ठीक है, सो यू आर इंक्रीजिंग द लाउडनेस. हाँ, यूवी रेज वगैरह भी कई जगह यूज होता है. यस प्रवीण, यू आर राइट, डिसइंफेक्टेंट में. यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखो कुछ क्वेश्चन तो आप आराम से रिलेट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सी वाटर डज नॉट फ्रीज. ऐसा होता है क्या? अरे पूरा आइसबर्ग ही होता है सी, है ना, ये तो होगा नहीं. अब देखो सॉल्ट वाटर फ्रीजेस एट द सेम टेंपरेचर एज फ्रेश वाटर. इसकी भी चांस कम है. अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आप सोचो कि क्वेश्चन दिया क्यों गया होगा, लाइक वेरी लेस लाइकली, है ना. तो चाहे तो बी होगा चाहे तो सी होगा. सॉल्ट वाटर में सॉल्ट होता है, इसलिए जल्दी फ्रीज हो जाता है. द राइट आंसर इज सी. बिकॉज ऑफ सॉल्ट इट फ्रीजेस अर्लियर, फास्टर.
स्लाइटली लोअर, कम ही टेम्परेचर पे है ना, स्लाइटली लो टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है देन फ्रेश वाटर, ठीक है। सो नहीं, लोअर लिखा है ना, हाँ। सो फ्रेश वाटर को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, फ़ारेनहाइट वी आर टॉकिंग, नॉट सेल्सियस। तो फ्रीज, बट सी वाटर को 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए बिकॉज उसमें सॉल्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस यू शुड नो, है ना। अच्छा, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कौन से डिग्री टेम्परेचर पर होती है, कैन यू प्लीज टेल मी, है ना, ये सब पता होना चाहिए होपफुली। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट। मतलब कौन से डिग्री पर एंड ऑल, 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो ये सब पता होना चाहिए। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इन द डे लाइट, येलो, ग्रीन, येलोइश ग्रीन, रेड, ये भी पूछा हुआ है। तो राइट आंसर इज सी, येलोइश ग्रीन, ठीक है। तो ये मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने निकाला भी, ये देखो, ये देख रहे हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर आप देख रहे हो जो पीक है, तो ये मैंने दिखाया था 400 से 700 नैनोमीटर होता है विजिबल लाइट, है ना, 400 से 700 नैनोमीटर्स। तो अगर आप देखो सबसे पीक कहां पे बन रहा है, येलोइश ग्रीन के आसपास बन रहा है, ये इस रीजन। तो सबसे ज्यादा आई जो सेंसिटिव होती है तो येलो ग्रीन पे होती है, फौरन चमकती है आंख येलो ग्रीन पर, तुरंत नजर पड़ेगा फौरन, है ना। सो द मोस्ट लाइक अट्रैक्टिव और लाइक दैट्स यू शुड नो। सो द राइट आंसर इज सी, इज द राइट आंसर। Which of the following is used in TV remote control? देखो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है अभी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, यूवी रे, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, है ना, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में, रेडियो वेव से कॉस्मिक रे तक। तो इसके बीच में टीवी रिमोट कौन सा में वेव्स यूज होता है? दिस इज वेरी इजी, आई मीन स्कूल में पढ़ाया जाता है, इंफ्रारेड। यस प्रवीण नाइक, यू राइट, प्लीज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो yes, dash is gained when a bullet is fired upwards vertically। देखो कितना इजी सिंपल फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्या चीज होगा बताओ। and these are taught in 9th class 9th physics in CBSE एग्जाम। हाइट से जो एनर्जी आती है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, mgh, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज हाइट, और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास इनटू v स्क्वायर, ये होता है ना। तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है और वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए यहां पर हो, यहां से लेके यहां तक हाइट पर हो, सो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो जो इसका मास है, मान लो इसका मास m है, सो m इंटू स्मॉल जी, वही 9 स्मॉल जी जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू h, यानी जितनी हाइट पर वो खड़ा है ये वाली h। अब जैसे गिरने लगेगा नीचे, यहां पर उसके पास मतलब इस पॉइंट पर mgh बस इतना रहेगा, mg, ये वाली हाइट तो कम हो गई, तो h1 मान लो हाइट है, तो यहां पर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mg h1 प्लस, लेकिन ये मूव कर रहा है तो इसके पास हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बह जाएगा, ठीक है। तो एकदम नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो उसकी हाइट मान लो 0 हो गई है, मान लो 0 हाइट है, एकदम जमीन पर है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, काइनेटिक एनर्जी इज अकम्पनीड बाय वेलोसिटी, ये कीवर्ड है। जहां पे कोई चीज मूव कर रही होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और जहां पर कोई भी चीज हाइट पर होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, और कोई हाइट पर भी है और मूव भी करी, सो देन इट हैज बोथ, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। सो दीज आर बेसिक फैक्ट्स, आई होप यू आर अवेयर। तो फायर्ड अपवर्ड्स है, तो अगर बुलेट है, बुलेट को अब फायर किया गया, तो जैसे ही फायर किया जा रहा है तो यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी होगी ग्राउंड पर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। फिर जैसे ऊपर जाके यहाँ पर इसके एकदम टॉप पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी स्पीड स्लो हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। हालांकि बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जब जैसी हाइट बढ़ती जाएगी, तो एकदम टॉप पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है, और जब फायर हो रहा होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी फुल रहेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना। तो कौन सी चीज गेन करेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था और ये गेन करके यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया कुछ एक्स अमाउंट, तो पूछ रहा क्या चीज गेन करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, क्या लूज करेगा, सो काइनेटिक एनर्जी इट विल लूज, बिकॉज यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर था और ऊपर में जाकर किसी वेलोसिटी 0 हो गई, सो इट विल लूज पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, बट इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी व्हेन गोइंग अपवर्ड,
ठीक है, आई थिंक इट्स सिंपल. इज इट क्लियर? These are taught in class 9th, NCERT and all. Is it clear? No one is writing yes, no. ठीक है. The next is grapevine is the term used in relation to what? तो ये तो just have an idea. It is used in informal communication. C is the right answer. इसको पढ़िएगा थोड़ा. The next is which of the following copper alloy is used for manufacturing springs and suspension filaments in electrical instrument? Bronze, aluminium, bronze, German silver, phosphorus, bronze. What is the right answer to this question? So the right answer is actually phosphorus bronze यूज किया जाता है. So the right answer is D. तो अगर आप देखो गौर से ये सब में प्रोपेलर वगैरह में फ्रॉफॉन है ना, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में फॉस्फर ब्रॉन्ज लिखते हैं. फॉस्फर ब्रॉन्ज. The next is chlorophyll is used in photosynthesis and it contains which element? ये बहुत फेमस क्वेश्चन मैंने देखा बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में आते हुए. क्लोरोफिल प्लांट सेल में होता है ऑफ कोर्स, और इसके बीच में मैग्नीशियम होता है Mg. मैं दिखाता हूं. अगर आपने ये देखो, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पर Mg है प्लस प्लस. So this is, you will find it. Yes, the right answer is A. Yes, Praveen Naik, you are right. Which of the following lights are absorbed by plant strongly? सबसे ज्यादा कौन सा कलर एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स? तो ह्यूमन आई के लिए सबसे मोस्ट सेंसिटिव मैंने बताया था येलोइश ग्रीन होता है, और प्लांट जो है सबसे ज्यादा कलर कौन सा एब्जॉर्ब करती है? ब्लू एंड रेड. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. अगर आप गौर से देखोगे ये वेवलेंथ है ना, अगेन मैंने बताया 400 से 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर लिखा ना है. सो वेव गए और यहाँ पे वायलेट और यहाँ पे रेड पे एंड हो रहा है. तो अब दो जगह देखोगे क्लोरोफिल का राइज है ना, एक ब्लू के आसपास राइज हो रहा है, ये ब्लू के आसपास हो रहा है राइज, और एक यहाँ पर रेड के आसपास राइज हो रहा है ना. ठीक है. सो ब्लू एंड रेड आर द प्लेस वेयर एक्चुअली they are very much sensitive and they absorb much. So B is the right answer. Blue and red. The next is fruits stored in a cold chamber exhibit long storage. Why? Because खासकर पेरिशेबल आइटम्स है, जैसे मान लीजिए टमाटर है, टोमेटो है, और लेट्स से फ्रूट्स है, वो सब जल्दी सड़ जाता है, पेरिशेबल है ना कहते हैं. सो दे नीड, तो उसको लंबा रखने के लिए क्या कहते हैं? कोल्ड स्टोरेज. आपने नाम सुना होगा, कोल्ड स्टोरेज होता है. इवन नाउ डेज वी हैव रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होती है. अगर ट्रक से सामान सप्लाई किया जाता है तो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होती है, ताकि खराब नहीं हो, सड़े नहीं जल्दी. क्यों? यस, प्रवीण नाइक राइट. रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज है ना, इसकी वजह से जो है धीरे धीरे सड़ता है, मतलब इट टेक्स टाइम एंड ऑल. सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन है ना. सो द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्लेज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? अगेन इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया भी था थोड़ा देर पहले है ना. So right answer is B, rough endoplasmic reticulum and ribosome. So B is the right answer to this question, है ना. So ribosomes and all, protein synthesis में. So B is the right answer. Yes, Karthik, you're right. Which of the following are responsible for origin of life? आपने पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब पढ़ोगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये सब का एलिमेंट के बिना ये पूरा नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड. So the right answer is B. Yes, Praveen and Karthik. कार्बन हाइड्रोजन तो पक्का पता होगा, नाइट्रोजन. So these are actually origins of life में हेल्पफुल था है ना. और ठीक है, तो जैसे जितने भी होते हैं मीथेन, ब्यूटेन, इस समय CH तो होता ही है ना. So that's how we define hydrocarbon term, plus nitrogen भी उसमें, which were responsible for the origin of life. So B is the right answer. Let's move on. Water can dissolve more substances than any other liquid because ये बहुत एक स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था. ठीक है, आई थिंक किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत प्रेस्टिजियस में क्वेश्चन आया था. एंड दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. देखो ये O है, ये है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना. दिस इज ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, इसका दो डबल बॉन्ड होता है ना ऐसे करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
तो डाइपोलर है ना, डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस पोलैरिटी होती है इसमें. It is dipolar in nature, so A is the right answer, and because of which it can dissolve more substance. आपने पढ़ा होगा कि जो डिसॉल्व करने के लिए अगर आयंस में ब्रेक हो जाए, so that's considered as good, है ना. So आयनाइजेशन से डिसोल्यूशन होता है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर केमिस्ट्री स्कूल बुक एंड ऑल. तो जितना आयोनाइज्ड है उतना अच्छा है ना. So it is considered as universal solvent, है ना, because it dissolves more substance than any other liquid, है ना, because other polar substance, है ना. So that is what you should know. Okay, the next is bile juice is made in dash and stored in dash. ये human body में होता है. I'm sure you must have heard it. So bile juice is made in liver and stored in gallbladder. So B is the right answer to this question. ठीक है. So B is the right answer. Let's move on to the next one, है ना. तो ये liver है. उसी के नीचे I think यहाँ पे नीचे में gallbladder. Which acid is produced in stomach? ये मैंने बताया कई बार. थोड़ा देर पहले ही हमने बताया था. The answer is very simple. HCl, hydrochloric acid. So A is the right answer to this question. Yes, Praveen Naik, you are right. Which of the following is both endocrine and exocrine gland? मतलब duct and ductless gland कहते हैं ना, endocrine and exocrine को. So एक ऐसा gland है जो दोनों है, endocrine भी और exocrine भी. ये काफी फेमस क्वेश्चन से सब पूछे जाते हैं. Right answer is pancreas. So B is the right answer. Yes, Karthik, you are right. Very good, है ना. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे है pancreas. This is pancreas, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना. Okay. So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video, and most likely we'll be having a session on Tuesday also the same time. ठीक है, Tuesday को भी class होगी, and where we'll be coming up with geography, international relations, etc. Because we have seen questions from geography, international, even economics. Yes, economics तो interview में भी helpful होता है. ठीक है, तो मैं कुछ economics से भी questions कराऊंगा जो previous year में पूछे में. Then we will discuss some geography and international relations question as well. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching.